बेसिकली अगर आपको यहाँ का एथिक्स एक बार समझ में आ गया, थिंग्स गेट इजियर फॉर यू टू क्रैक. क्लिनिकल असेसमेंट पार्ट 2 जब हो जाता है, श्योर शॉट यू गेट द रजिस्ट्रेशन डन, यू गेट द जनरल रजिस्ट्रेशन. उसके बाद आपको चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब इज 100%. वो ही होता है ना कि आप अगर मास्टर्स के स्टूडेंट को रखोगे, बीपीटी के स्टूडेंट को रखोगे, हमेशा वो लोग मास्टर्स के स्टूडेंट को वेटेज देंगे. इट्स द सेम वे. आप क्लिनिकल असेसमेंट क्लियर करोगे, दे नो दैट यू हैव द फुल रजिस्ट्रेशन. जितना भी मैंने लोगों से बात किया है, दे से दैट इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड हियर. In Australia, it's a bit more organized and there's a lot of documentation here. तो ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन का कोई ऐसा कोई कुछ ऐसा है कि ये स्पेशलाइजेशन का ज्यादा डिमांड है लाइक. So hello everyone, welcome to you all another podcast in Academically. So today with us Sayyida, she is one of the students at Academically. She is a physiotherapist. She just passed this exam, you know. So I will talk to her इनके उन्होंने कैसे किया और इनकी क्या स्ट्रेटेजीज थी, हाउ मेनी आवर्स शी स्टडी और क्या लर्निंग से इनकी अपनी जर्नी से, और कुछ मिस्टेक्स भी किया होगा मे बी आपके लिए जो है एडवांटेज रहे इफ यू आर प्लानिंग टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया, यू वांट टू वर्क एज ए फिजियोथेरेपिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया. तो ये से हम उनकी जुबानी उनकी कहानी सुनते हैं कि उन्होंने कैसे एग्जाम को पास किया है. हाय सैयदा, वेलकम टू एकेडमिकली. Hello sir, how are you doing? I'm good, thank you. Sir, if you can just give us, your brief introduction from about you, yourself, your education, your experience so far. Okay, so first of all, I would like to start off by saying that I have done my graduation and post-graduation in MSK. Have had an experience of almost 8 years in the field of physiotherapy. Currently, I reside in Perth, and yeah. In these 8 years, you have work experience. So is Yeah. it experience, so you work in any clinic, or what kind of experience you was back in India? Okay, so for initially I was attached to Nanavati Hospital for around 2.5 years. Okay. Under Dr. Ali Irani. Okay. Post that I was COVID struck in. I had to do freelancing therein. Then after that, I joined a clinic in Mumbai in Bandra. So if you've known of Physio Rehab, I was working with Physio Rehab. Post that, I had to migrate to Australia because of my husband. So when I was doing my masters, I was again attached to different hospitals back in India. So yeah, I was working there. I've had the experience of working in a hospital setup as well as a clinical setup. Okay. So since you are a master degree, right? So basically this exam, basically, if you can just give us like how many questions and how many hours, need to write this exam. If you can just brief about this exam, then we will talk the difficulty level and all those things in later on. So there are like 120 questions that they give you. So there are 2 papers basically. So each paper has 60 questions. That is like 15 case scenarios having 4 sub questions each. So yeah. So that rounding up to around 120. So yeah. Is there any particular topic they give more weightage, more questions, something like in your exam? No, it is different for everyone. Everyone's experience is gonna be different. Now, if I go up saying that I won't be I won't justify that by saying that ये टाइम न्यूरो में ज्यादा आया या ये टाइम ऑर्थो में ज्यादा आया, वैसा नहीं होता. केस क्या रहता है? केस क्या रहता है? एक केस आता है, एक केस में दे गिव यू अ बिट ऑफ न्यूरो, अ बिट ऑफ ऑर्थो, अ बिट ऑफ कार्डियो. So they give you everything. अभी उसमें से they tell you that you yourself use your brain by saying, अभी मेरा पेशेंट आईसीयू में है तो उसको कार्डियक इशू भी हो सकता है, न्यूरो इशू भी हो सकता है, लेकिन ही इज एडमिटेड फॉर एन ऑर्थो केस. So you're getting it. So you're actually, it's like that cap that you're wearing. You have to wear that thinking cap, keeping the patient exactly in front of you. Understanding कि अब मैं ये पेशेंट के लिए क्या करूंगी, मेरी प्रायोरिटी क्या है. So your cases come like that. There is nothing that इसको ज्यादा वेटेज है, उसको ज्यादा वेटेज है. मतलब एंटायर सिलेबस जो है वो पढ़ना पड़ेगा. वी कैन से कि इसमें से ज्यादा है इस बार और नेक्स्ट टाइम कि ये पोर्शन हमेशा क्वेश्चन करता है, तो दे कैन चेंज ऑलवेज, राइट? Exactly. And final year, if you go to see graduation ka, you can say the 4th year syllabus, you have to do it pit pat. वो बराबर से करोगे, if you do that well, it gets easier for you to crack the written assessment. So means जो क्लिनिकल वाला पार्ट है ईयर 4 मतलब ईयर 3-4 वाला,
वो मेनली ज्यादातर वो पूछते हैं अगर आपने बीपीटी किया इंडिया से, राइट? Exactly. So, in this exam, as you mentioned that what kind of difficulty, because each paper is a separately different, entirely different. Some student might got little bit easier exam, some might got very tough exam, some might got like mediocre. So this is not someone, we can say entirely very tough exam or very easy exam. So how you rate this in your experience? So see, in my opinion, exam अगर आप देखने जाओ ना, हाँ, material cases are pretty similar what we deal with India, but यहाँ का ethics is different. yes, यहाँ पे basically अगर आपको यहाँ का ethics एक बार समझ में आ गया, things get easier for you to crack. हाँ, that is the entire thing in a nutshell. I would tell you, आप ethics बराबर से अगर करके जाओगे, हाँ. समझ के जाओगे, it gets easy. Apart from that, you need to understand the pathophysiology about the conditions. आपको उसका management एथिक्स रिलेटेड कुछ अगर एक थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो, कि भाई इट इन द सेंस कि भाई पेशेंट को हमको कैसे ट्रीट करना है। फॉर इंडिया में तो कुछ ऐसा नहीं होता, सबको एक बार यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्टली, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम दिस कम्युनिटी देन यू हैव टू टॉक इन दैट वे, दिस इन दैट। तो मतलब व्हाट डू यू मीन बाय द एथिक्स में क्या ऐसा डिफरेंस रहता है इंडिया से इन ऑस्ट्रेलिया में? इफ यू कैन जस्ट लिटिल बिट एलाबोरेट, कोई एग्जांपल देके आप बता पाए? So for example, I'll just give you this. The only thing that I can think of is this age. अभी हाँ, जैसे इंडिया में अगर हमारे पास कोई 16 साल का बच्चा आएगा, यस, अगर पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, इसको एल्बो का फ्रैक्चर है, इसका हाथ आपको सीधा करना ही करना है, तो हाँ, हम क्या करेंगे? हम पेरेंट्स करना की ही बात कर, मानेंगे। हाँ, करना ही हाँ, करना हम है। बच्चा रोएगा, मतलब रोना धोना क्लिनिक सर पे उठा लेगा, लेकिन हम क्या करेंगे कि उसका हाथ सीधा करेंगे। यस, यहाँ पे कैसा है, ये अथॉरिटी बच्चों के हाथ में आती है। 16 साल और उसके अबाउट 16 to 18 years is considered the individual is capable of taking his own decisions, ऑन डिसीजन। what is right. Yeah, so I can just give you this, like ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने खुद ने मेरी एग्जाम में, I have seen this question coming up कि this child is of 16-year-old and he's gone back home for discharge हुआ है, so उसको ट्रीटमेंट देना है, पेरेंट्स घर पे नहीं है, तो आप क्या करोगे? you'll call the parents, you'll ask the student, you'll ask the kid, और वैसे ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो अपने को थोड़ा लॉजिक लेके समझना चाहिए कि एक बार अगर तुमने एथिक्स पढ़ लिया है तो तुमको पता है कि 16 years है, तो 16 years में he is capable of giving his own consent to things. So यहाँ पे बेसिकली कंसेंट, इफ यू गो टू से कंसेंट, दैट मींस इंडिया में हम थोड़ी ना पूछते कि इंडिया मैडम में कैन तो आई कोई स्टार्ट योर कंसेंट की बात ही ट्रीटमेंट। नहीं होती है, राइट? मतलब पेरेंट्स ने अगर बोल दिया तो वही करना है। Exactly. So this is what I mean. In a nutshell, I would say that this is important. यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सी आई मीन ये एग्जाम, जैसे आपने यू क्लियर दिस एग्जाम, तो लाइक ये जो बहुत सारे जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं जो प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग भी, और बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, तो क्या कुछ हेल्प करता है क्या एग्जाम में प्रैक्टिस के टाइम में या कुछ? आपको कॉन्फिडेंस आता है। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू माई थिंग। मुझे एक गूगल ड्राइव रहता है, the one that it is circulated to every student who is appearing for the APC exam. So मैं क्या करती थी, वो written जो Google Drive से I would see those question answers, I would appear for it and I used to give it for correction. Precisely, I would give it to Michael sir, Mansi ma'am, Dr. Kushangi. So I would give it to these people and I would expect them to give me the answer. So उन लोग corrected copies करके मुझे वापस भेजते थे, and I would strongly recommend every student to confront or rather to justify, to ask for answers as per you sir, as per you ma'am, why do you say that it is option A, मुझे ऐसा लग रहा है it's option C। तो उसमें भी जब आप एक डिस्कशन करते हैं, yes, definitely. As a student, if you think that we are saying answer A is correct, but if you think that the answer according to you maybe B or C, so definitely you can ask with the lecturer. You also your duty, कि भाई why it is exactly, why it is A, why not B or C? So they can give some explanation why it is A. Sometimes it can be mistake भी हो सकता है कभी कभी, और exactly, और कभी कभी आप स्टूडेंट कभी मिस्टेक हो सकता है कि स्टूडेंट समझ रहा है कि मेरे को बी होना चाहिए, जब वो लेक्चर ने एक्सप्लेन किया नहीं ए होगा बिकॉज दिस इज द रीजन, देन आपको अगर एग्जाम में आ भी जाएगा वो एंटायर सिनेरियो आपको याद रहेगा और यू कैन एबल टू क्लियर द वेरी वेरी इन इजी वे।
वेरी ट्रू दिस डिस्कशन आई वुड रिकमेंड दिस टू ऑल स्टूडेंट्स कि आप पूछो, क्योंकि लोग क्या करते हैं, चुप बैठ जाते हैं क्लास में. दैट्स रॉन्ग. यू शुड आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस ओनली देन कैन यू अंडरस्टैंड टू व्हाट एक्सटेंट डेफिनेटली यू आपको क्वेश्चन अंडरस्टूड. पूछने चाहिए, इवन क्वेश्चन अपने आप से ही पूछो, देन आपको समझ में आएगा भाई ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो बी लग रहा है और सर ने बोला है सी है इसका, ये ए है, तो ट्राई टू सी स्लाइड्स और लेक्चर, इफ इट्स नॉट समझ में नहीं आया देन यू हैव टू आस्क द लेक्चर डेफिनेटली, दिस इज समथिंग वेरी गुड, या तो दिस आई एम आल्सो एग्री ऑन दिस, अच्छा अच्छा, आप सही ये बताइए कि ये जो पार्ट वन के बाद में इन जनरल जॉब मिल जाता है क्या, या पार्ट टू के बाद ही जॉब मिलता है 100%, ये ऐसे क्या सिनेरियो है मेरे ऑस्ट्रेलिया में? सो सी, जितना भी मैंने अब तक देखा है, दे वांट यू टू क्लियर योर क्लिनिकल असेसमेंट. क्लिनिकल असेसमेंट पार्ट 2 जब हो जाता है, श्योर शॉर्ट यू गेट द रजिस्ट्रेशन डन, यू गेट द जनरल रजिस्ट्रेशन. उसके बाद आपको चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब इज 100%. Yes. Over here, after clearing your written assessment, I'm not saying that you do not get it. You do get the job. It's not like that, but it's just your luck. Today, my मतलब वो luck is हाई bad. चांस रहेगा आपका, वंस यू पास बोथ एग्जाम, क्लिनिकल पास के बाद में 100% हो जाएगा, यहाँ लगा लो 50-60% आपका रहेगा, एंड इन दिस आल्सो आई कैन रिकमेंड, प्लीज इफ यू आर जस्ट सिटिंग एग्जाम आपने पास किया है, तो डोंट गिव एनी योर ऑन चॉइस कि नहीं मेरे को सिडनी में जॉब करना है, मेरे को मेलबर्न में करना है, इतना उसके पास में वो नहीं, आपको रखेगा ही नहीं बेसिकली, बिकॉज दे नीड, इसके बाद फुल रजिस्ट्रेशन है जिसने दोनों एग्जाम पास कर लिए. अब अगर आप ओपन हो कि भाई आई एम रिलोकेट कर सकता हूँ मैं किसी भी रीजनल एरिया में, आप मेरे को कहीं भी भेज दो, इन दैट केस दे मे कंसीडर, बिकॉज जहां पर उनको कोई मिल नहीं रहा होगा वो आपको रख सकते हैं, ऐसे केस में. अदरवाइज सिडनी मेलबर्न में बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने दोनों एग्जाम पास किए होंगे, वो उनको इजिली मिल जाएंगे. वो ही होता है ना कि आप अगर मास्टर्स के स्टूडेंट को रखोगे, बीपीटी के स्टूडेंट को रखोगे, हमेशा वो लोग मास्टर्स के स्टूडेंट को वेटेज देंगे. इट्स द सेम वे. आप क्लिनिकल असेसमेंट क्लियर करोगे, दे नो दैट यू हैव द फुल रजिस्ट्रेशन. सो आपको ज्यादा लिमिटेड रजिस्टर्ड वाले फिजियोस के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा. दे आर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स नाउ, जिनके पास रजिस्ट्रेशन है. अच्छा, इन योर बहुत सारे आपके फ्रेंड भी होंगे यहाँ इन ऑस्ट्रेलिया में जो जॉब कर रहे होंगे, तो इन जनरल ऑस्ट्रेलिया में जो फिजियो की जॉब्स होती हैं वो कहाँ लगती हैं? इट इज लाइक ए फिजियो की अलग यहाँ पे क्लिनिक होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, और क्या डिफरेंस है लाइक आप इंडिया में, बिकॉज यू वर्क इन इंडिया लॉन्ग टाइम, आपने काम किया है वहां पर. टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है वर्क का. सो मैं वो बेसिस पे मैं आपको इसका आंसर नहीं दे सकती कि मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क एक्स ओवर देयर एंड वर्क एक्स ओवर हियर. बट जितना भी मैंने लोगों से बात किया है, दे से दैट इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड हियर. in Australia, it's a bit more organized and there's a lot of documentation here. इंडिया में हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते. यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं करोगे, द पेशेंट कैन सू यू इन टर्म्स कि अगर उनको जरा सी खरोच आती है या कुछ है, तो उन लोग आपके ऊपर केस कर सकते हैं. आपको अपनी जस्टिफिकेशन के लिए यू नीड टू हैव सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, राइट? कि मतलब जब आपने फर्स्ट असेसमेंट किया तो आपने क्या देखा था जिसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ पेशेंट को. सो यू नीड, दैट इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग बैकअप फॉर यू, डॉक्यूमेंटेशन. जैसे यहाँ पर तो बहुत सारी फिजियो क्लिनिक, जैसे हमारे मेरा जो ऑफिस है वो सेकंड फ्लोर पे, तो हमारे फ्लोर के जो फर्स्ट फ्लोर पे बहुत बड़ा फिजियो क्लिनिक है यहाँ पर, हम यहाँ पर सिडनी में. तो वहां पर मेनली जो ओल्ड एज पेशेंट, बहुत पेशेंट वहां पे आते हैं मैं देखता रहता हूँ वहां पे तो यहाँ पर क्या होता है कि मेनली यहाँ पर क्लिनिक्स भी होती हैं फिजियो की, हॉस्पिटल्स में भी जॉब्स होती है तो, और यहाँ पे स्पोर्ट्स फिजियो तो ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन का कोई ऐसा कोई कुछ ऐसा है कि ये स्पेशलाइजेशन की ज्यादा डिमांड है, लाइक कौन से ज्यादा ज्यादा पेशेंट होते हैं ऑस्ट्रेलिया में इन जनरल, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो? आई वुड से जीरियाट्रिक्स. यस, 60 के बाद में यहाँ पर आप रिटायर्ड हो जाते हैं लोग, एंड गवर्नमेंट बेसिकली उनको टेक केयर करता है, उनका पूरा मंथली उनको पेमेंट मिलता है तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट लोग रहते हैं. इट इज नॉट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर चिल्ड्रन. जैसे इंडिया में क्या होता है, उसका बेटा है तो बेटा ही फिर पेरेंट्स को देखभाल करेगा, इंडिया में तो हमारा ये कल्चर है, राइट? पर यहाँ पर इंडिपेंडेंटली रहते हैं तो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन बहुत ही हाई डिमांड रहता है फिजियोज का. आप स्पेशली जितने भी जो हैं एज केयर होम्स होते हैं वहाँ पर इनका हाई डिमांड रहता है इन जनरल. इवन स्पोर्ट्स फिजियो का भी यहाँ पर डिमांड रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो है स्पोर्ट्स के क्लब्स होते हैं, छोटे छोटे क्लब्स होते हैं, वहाँ पर भी फिजियो को वहाँ पर रखा जाता है. इट इज मतलब मैं कहूँगा इंडिया से ज़्यादा स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में, वाइड स्कोप है एज कम्पेयर टू इंडिया.
तो सीधा एट द एंड ना कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस, जो स्टूडेंट हमें बात कर रहे हैं? I would just want to tell every student, take this exam seriously, study well. 8 to 12 hours is a compulsion. Genuinely आपको बता रही हूँ मैं, 8 to 12 hours is a compulsion, at least for a month and a half, 45 days. You do this, even if you're giving 15 days time to each subject. If you're considering only 45 days, you will be able to crack this exam. Apart from आप that, यस, दिस इज वेरी गुड। आई मीन कि आप इनिशियली स्लोली स्टार्ट करें, मे बी 2-3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, देन यू कैन इंक्रीज। बट आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस, देयर इज वन गाय होवर्ड, यू कैन सी दिस वीडियो ही हियर। तो होवर्ड वन ऑफ आवर स्टूडेंट आल्सो, तो उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग था। मे बी उनको इजी एग्जाम आया, मुझे नहीं पता। ही जस्ट स्टडी वन मंथ एंड ही पास द एग्जाम। तो ईच you स्टूडेंट, talking about, are you talking about Dr. Harvey? Are you यस talking about यस him? यस यस यस। Yeah, तो हर स्टूडेंट का yeah. अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक्चुअली बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हमने स्टडी 10 साल पहले किया, हम पूरा भूल चुके हैं फिजियोथेरेपी। उसका अगर देखोगे, उसने 40 ईयर पहले फिजियोथेरेपी का डिग्री किया, स्टिल उसने पास किया ये एग्जाम 45 डेज में, उसके अकॉर्डिंग उसने बोला है। नो, आई नो वो लेक्चरर भी थे बीच में, लेक्चर भी उन्होंने पढ़ाया भी था, प्रैक्टिस भी करते हैं, 40 साल से उनको बहुत एक्सपीरियंस था। बट इन जनरल जो आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा था ईयर 1 और 2 में, वो आप पूरा टोटली भूल जाओगे ना। फिर आपको प्रैक्टिस चीजें याद रहती हैं जब आप काम करते हो, जॉब जॉब करते हो। जो थ्योरेटिकल चीजें होती हैं वो लोग भूल जाते हैं, पर एग्जाम में थ्योरेटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं क्या Exactly. That's बोलूँ? what I told you. That's what I told you. It's, you have to understand that the patient is in front of you. आप वो पेशेंट को वो टाइम को अपने सामने रख के, यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर दैट पेशेंट। इट इज नॉट दैट कि आपको ये पूछेंगे कि आपकी ये आर्टरी, लाइक यू नो, इट्स नॉट दैट कि आपकी हाथ में कौन सी आर्टरी जाती है या कौन सा वेन जाता है। उसका अगर आप सोचो कि उसका हार्डली 10% आता है, लेकिन 90% इज प्रैक्टिकली यू हैव टू अप्लाई ऑन योर पेशेंट। ये इट्स तो दैट। बिल्कुल गुड से जी बताइए सैयदा ने, कि जो भी केस आ रहा है ना, केस को आप अपने सामने ही समझो, ये मेरे सामने एक पेशेंट बैठा हुआ है, इसको ये प्रॉब्लम्स हैं, और अब इसको मैं कैसे ट्रीट करना है इस पेशेंट के लिए। तो उस वे में अगर आप सोचेंगे, आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। इट इज नॉट जस्ट कि आप रीड कर रहे हो और उसका कौन सा आंसर होगा, है ना। तो अच्छे से समझो उस केस को, एंड देन थिंक अबाउट कि भाई इस पेशेंट के लिए क्या आंसर होना चाहिए। एग्जैक्टली। यस, थैंक यू सैयदा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।